Dear student, today we have to discuss the new subject, that is operating system. Here we have to discuss the course overview of the operating system. So this is the program for BTech IT 5th semester third year student, and the subject code is IT 501, that is operating system, and topic is course overview. Now this is July December 2021. This is lecture number 1. Myself Srish Mandave, assistant professor ITM CS. Now first we have to discuss the outline of this PPT. The first one is prerequisite of topic. Then after that, we have to discuss the syllabus overview of this subject, that is operating system, and then exercise, learning outcome, then the suggested reading books. Now first we have to discuss the prerequisite of topic. The student should have a general idea about operating system. So student should have a know about what is operating system, because in previous uh, classes we have to know about basic or computer system, then we have to learn about operating system. The operating system, just like a it is a interface between the hardware and the software. Without operating system we cannot operate the laptop, we cannot operate the mobile, because in the laptop we can use a window operating system, and uh, in the mobile we can use a Android operating system. So operating system, just like a interface, it is a intermediate between the hardware and the software. So that's where the basic knowledge about the operating system. Or student should have a general idea about this, know about this operating system. Then after that, the student should have a general idea about the file. What is the file concept? The file, just like a name, and this file is a collection of data or information. That is your file. So this is the prerequisite of topic. You student should have a general idea about the operating system and general idea about the file. So here we have to discuss the one by one syllabus, unit 1, 2, and 3, and 4, 5. Example of operating system, discuss what is the operating example of the operating system. Laptops, अगर हम बात करें laptops की, we can use a window operating system, or there are a different type of versions of a Windows we can use in a laptops. Windows 98, 2000, and currently 2010, 2009 we can use in a laptops. And then after that, tablets also use the operating system and operate a different type of functions. It is also example of a operating system we can use a particular operating system in a tablet. Smartphones, it can also use the operating systems, Android operating system, and desktop computer, it is also use the operating system. So all type of devices that can based on the operating system, or here it can be compulsory operating system. Without operating system they cannot work. So laptops, tablets, smartphone, and desktop computer are all the example of operating system. Now here we have to discuss the syllabus, where one by one we have to discuss. Unit 1, there is an introduction of operating system, and unit 2, it is a process concept. Unit 2 is a process concept, and after that, unit 3 is a deadlock, and then unit 4 is a virtual memory, and unit 5 is a discharge. So here we have to describe our syllabus unit by units, and we have to focus a main topic, or we have to focus on the overview of the main topic in particular subject, particular units. So unit 1 is the introduction of operating system, unit 2 is the process concept, unit 3 is the deadlock, 4th is the virtual memory, and 5 is the disk schedule. Now when we have to learn the unit 1, that is introduction of the operating system. So these unit 1 is include a different type of topics. So here we have to discuss the major topic, that is types of the operating system, and second is the operating system services. Now first we have to discuss the what is operating system. So operating system, just like act as an intermediate. Operating system act as an intermediate or an intermediary between the user of a computer and the computer hardware. The first one is operating system is a intermediate. Second, the purpose of the operating system. What is the purpose of the operating system? The purpose of the operating system is provide the environment for a user execute program in a convenient and efficient manner. So this is the operating system basic purpose. What is the basic purpose here? What is the purpose of the operating system? It provides the environment for a user. It can execute the program convenient and efficient manner. Then we have to discuss the type of operating system. There is a different types of operating system we can use. First one is a multi-programming operating system, and then after that multitasking and the multi-processing. There's a different type of categories, but these categories are very important or initial level: multi-programming, multitasking, and the multi-processing. When we are talking about multi-programming, so multi-programming, more than one program that are reside in the main memory, and
that are executed in a particular bunch or a batch. That is your multi-programming. Objective क्या होगा multi-programming का? What is the objective of the multi-programming? Maximum CPU utilization. So that is the first one is multi-programming. We have to learn in this topic in type of the operating system. Second is multitasking, where we have to perform the multiple tasks performed by the operating system. That is a multitasking operating system. Yeah, it can be more than tasks performed by the operating system. Means जैसे हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या हम किसी सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर हम मल्टीपल टास्क की अगर बात करते हैं तो वर्ड फाइल आपकी ओपन है, इंटरनेट भी आपका ओपन है, पीपीटी भी आपका ओपन है, तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क आपके परफॉर्म हो रहे हैं. दिस इज मल्टीटास्किंग. एंड मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एक से अधिक प्रोसेसर होंगे, वेयर वी हैव टू यूज ए मोर देन वन प्रोसेसर्स, और ये जो प्रोसेसर होंगे पैरेलली क्या करेंगे, इसी टास्क को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल हम जैसे IRCTC में आपका क्या होता है, बहुत सारे विंडोज होते हैं जिसमें पैरेलली काम परफॉर्म किया जाता है और सबका टास्क जो होता है वो कॉमन होता है, दैट इज क्या करना, आपका टिकट बुक करना. ठीक है, तो इस तरह से हम कई टाइप्स भी डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा और आपका कहना चाहिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा. ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा. तो कई टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूनिट 1 के अंतर्गत आएगा. इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं. इसकी बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करें तो देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आपका क्या है, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोड करता है किसी प्रोग्राम को, कहाँ पर, मेमोरी में. भाई सबसे पहले हम प्रोग्राम को लोड करना होगा मेमोरी, देन इट कैन बी एग्जीक्यूट. ठीक है, तो इस तरह से पहला टास्क क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा है. इसके अलावा बहुत सारे जो सर्विसेज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें सेकंड सर्विस की अगर हम बात करें, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. किसकी बात करें, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात करें. तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी कोई हम कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन किसका होगा, यूजर का डिवाइस के साथ होगा. तो कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइसेस, तो हमें क्या करना होगा, ये सब जो मैनेजमेंट होगा या जो ये कंट्रोलिंग होगा, ये कम्युनिकेशन होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. तो इस तरह से इनपुट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी यूजर और डिवाइसेस का क्या होता है, आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो इनके बीच में जो कंट्रोल या कम्युनिकेशन का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा हम क्या करते हैं, फाइल को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की जो फाइल होंगी उनको किस तरह से मैनिपुलेट करना, ये भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के अंतर्गत आता है. इसके अलावा अगर हम और मेजर टास्क पे जाते हैं तो दैट इज रिसोर्स एलोकेशन. एक और सर्विस क्या है कि रिसोर्स एलोकेशन. जब भी आपका मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब क्या होते हैं, रन होते हैं एट ए टाइम पे. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये क्या होगी कि जो डिफरेंट टास्क होंगे उसके लिए रिसोर्स को एलोकेट कराना होगा. क्या करना होगा, रिसोर्स को एलोकेट कराना होगा. जो सारे कहना चाहिए जो टास्क होंगे वो रिसोर्स पे डिपेंड करेंगे और ये रिसोर्स मिलने के बाद वो अपने टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज पे डिस्कस करेंगे, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं. जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, जैसे हमने डिस्कस किया मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग. इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, वो और रियल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज पे जब हम जा रहे हैं तो इसमें हमने सबसे पहले बताया कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, हमें प्रोग्राम को लोड करना होगा मेमोरी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है. देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात करें, किस तरह से यूजर जो है इंटरेक्ट हो रहा है डिवाइसेस के साथ, तो इनके बीच में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. फाइल के मैनिपुलेशंस की हम बात करें कि किस तरह से नंबर ऑफ फाइल्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं उनके बीच में जो मैनिपुलेशन का टास्क है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. रिसोर्स एलोकेशन की हम बात करें कि जब भी हमारा मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होगा, उस मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट के लिए जब हमारे पास बहुत सारे जॉब जो हों वो एग्जीक्यूट होते हैं एट ए टाइम पे, तो उनके लिए जो रिसोर्स एलोकेट कराने का काम है, ठीक है, वो भी किसका होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टास्क जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. सेकंड यूनिट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोसेस. सेकंड यूनिट हम किस पे पढ़ेंगे, प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे. अब जब हम प्रोसेस पे जा रहे हैं तो जब यूनिट सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे तो यहाँ पर कई आपके टॉपिक होंगे, जिसमें मेन टॉपिक हम यहाँ पे एक ओवरव्यू के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपका प्रोसेस कंसेप्ट है, देन आफ्टर प्रोसेस ऑपरेशन एंड द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. दैट आर द मेजर टॉपिक ऑफ इन द केस ऑफ प्रोसेस. तो प्रोसेस कंसेप्ट की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज एन इंस्टेंट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम. प्रोसेस क्या हुआ, एक इंस्टेंस होता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का
that is being executed, इसको हम execute कराते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस जस्ट लाइक ए इंस्टेंट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के कंसेप्ट में आपका प्रोसेस स्टेट आता है। क्या आता है? प्रोसेस की स्टेट आती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस की स्टेट होंगी, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट वी कैन लर्न इन दिस प्रोसेस कंसेप्ट। इसमें सबसे पहले आपका आता है न्यू, देन आफ्टर रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टेस्टिंग। ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस working and process state we have to learn in the process concept. And second is the process operation. Second is a process operation. So in the case of the process operation, there are two type of operation performed by the process. First one is creation of the process and second is the termination of the process. तो प्रोसेस जो होगा सिस्टम में वो एग्जीक्यूट कराई जाती है कॉन्करेंटली। भाई हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस जो होंगी वो हम क्या कराएंगे सिस्टम में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोसेस को क्रिएट भी कराएंगे और प्रोसेस को डिलीट भी कराएंगे। तो ये जो दोनों टास्क होते हैं प्रोसेस का क्रिएशन और प्रोसेस का डिलीशन जो होता है वो हम कराते हैं डायनेमिकली कराते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस टाइप की जो मैकेनिज्म होगी जहाँ पर हम प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसेस को डिलीट कर रहे हैं डायनेमिकली, हमारे पास एक मैकेनिज्म होगा जहाँ पर हम प्रोसेस क्रिएशन और प्रोसेस टर्मिनेशन को यूज करेंगे। तो दैट इज द टास्क आर परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑपरेशन। देन आफ्टर दैट we have learned about the inter-process communication. So in the system, there are number of processes are reside, and process have a two types. First one is a independent process, and second is a dependent process, or it also known as a cooperative process. So in the case of the cooperative process, we have to use the concept of inter-process communication. यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगी वो सिंपल अपना टास्क को परफॉर्म कराएगी, किसी प्रोसेस को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही है। बट जब हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करेंगे तो वो ऐसी प्रोसेस होगी जो कि दूसरी प्रोसेस को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब कोऑपरेटिव प्रोसेस हम यूज करेंगे तो इसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को यूज करेंगे, और ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कोऑपरेटिव प्रोसेस के साथ मिलके दो मैकेनिज्म को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एक होता है शेयर्ड मेमोरी, किस तरह से मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, और दूसरा होता है मैसेज पासिंग, और किस तरह से हम दो प्रोसेस के बीच मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस टाइप का जो कंसेप्ट होगा वो हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट सेकंड होगा, दिस इज योर यूनिट सेकंड, जहाँ पर हम प्रोसेस के कंसेप्ट पे, प्रोसेस के ऑपरेशन पे और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ जो थर्ड यूनिट होगी वो डेडलॉक के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? डेडलॉक के बारे में। तो डेडलॉक जो होता है वो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी जो ऐसा कह सकते हैं डेडलॉक को अगर हम डिफाइन करें कि सेट ऑफ ब्लॉक जहाँ पर प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, होल्ड करती हैं रिसोर्सेज को। सेट ऑफ ब्लॉक जहाँ पे प्रोसेस क्या करेंगे, होल्ड करेंगी रिसोर्सेज को और वेट करेंगी रिसोर्सेज का। ठीक है, जो कि किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या किया गया, होल्ड किया गया। तो इस तरह से जो प्रोसेस का होल्ड करना रिसोर्सेज का और दूसरी प्रोसेस के लिए दूसरी रिसोर्सेज के लिए वेट करना, तो इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है वो डेडलॉक के अंतर्गत आता है कि प्रोसेस जो है कई बार ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज का वेट कर रही है या होल्ड करना चाह रही है वो किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, तो उसको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। और सिंपल अगर शब्द में कहें हम डेडलॉक क्या कहलाता है, डेडलॉक एक ऐसा कंडीशन कहलाता है जब हम सेम टाइम पे दो लोग एक ही चीज को क्या करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, दैट इज योर कंडीशन ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो ये डेडलॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से प्रोसेस जो है वेट करती है रिसोर्सेज का, और वो रिसोर्सेज जो दूसरी प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक, तो इसमें हम डेडलॉक पे डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो टॉपिक हुआ, और इसमें डेडलॉक के बहुत अच्छे चीज़ें हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो किस तरह से डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और 4 टाइप के बेसिक जो डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, होल्ड एंड वेट क्या होता है, इसके अलावा नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक अगर फुलफिल होते हैं तो वो डेडलॉक की कंडीशन ऑकर होगी। ठीक है, और इसके अलावा डेडलॉक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक के अंतर्गत। सेकंड जो टॉपिक होगा दैट इज योर मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विसेज के अंतर्गत आता है जिसको हम कहते हैं दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है एक फंक्शनलिटीज होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, और इस फंक्शनलिटीज के थ्रू हम क्या करते हैं, किस तरह से हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम क्या करेंगे, मेमोरी को मैनेज करेंगे, प्रोसेस को जो है मेन मेमोरी में रखना है या प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में रखना है। इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जिस प्रोसेस
का हमें करंटली यूज करना है, जो अभी एक्टिव है उसको मेन मेमोरी रखेंगे, और जिस प्रोसेस का भी हमें यूज नहीं करना है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, रखेंगे सेकेंडरी मेमोरी रखेंगे या डिस्क में रखेंगे। इस टाइप का जो कंसेप्ट होता है वो स्वैपिंग का कहलाता है, जहाँ पर हम प्रोसेस को मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में क्या कराते हैं, स्वैप कराते हैं। ठीक है, तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, जो कि हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से थर्ड यूनिट जो है कवर करेगा डेडलॉक को और इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, इसके अलावा जो हम यूनिट फोर्थ है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम करेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में, इसके बारे में वर्चुअल मेमोरी के बारे में। और यहाँ पर हम दो मेजर कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, दो कंसेप्ट आपके आएंगे, वर्चुअल मेमोरी और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अगर हम वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कि यहाँ पर हम सारे सिलेबस का एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं और यूनिट बाई यूनिट्स जो आपके मेजर टॉपिक है उस पर हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है एक स्पेस होता है, ठीक है, और ये स्पेस जो है प्रोग्रामर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जब भी आपके पास एक स्मॉल फिजिकल मेमोरी जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो कुल मिला के जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक टेक्निक्स होती है, और ये टेक्निक्स क्या होती है, एक लार्ज वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करेगी प्रोग्रामर को, जहाँ पर स्मॉल फिजिकल मेमोरी क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें मेमोरी की जो कंसेप्ट करने की जरूरत होती है वो हमें नहीं होती है, और वर्चुअल मेमोरी एक सेपरेशन होगा, जहाँ पर ये सेपरेशन क्या कर रहा है, किस तरह से हम ह्यूज वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करेंगे प्रोग्रामर को, जहाँ पे प्रोग्रामर को मेमोरी की कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और ये एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी एक लार्ज मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से वर्चुअल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिमांड पेजिंग के थ्रू होता है, और डिमांड पेजिंग जो है किस तरह से वर्चुअल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन करता है और कई कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो मेजर टॉपिक हुआ दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। क्या होगा आपका, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होगा। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस पेज को मेमोरी में रखना है, ठीक है, और किस पेज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस जो होती है वो रिप्लेसमेंट की होती है। ठीक है, और इस रिप्लेसमेंट के थ्रू हम क्या कहते हैं, देखते हैं ये जो रिप्लेसमेंट होता है वो हम किसी एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड करेंगे, और ये एल्गोरिथम जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू डिफाइन किया जाएगा कि किस प्रोसेस को या किस पेज को हमें मेमोरी रखना है, किस पेज को हमें कहाँ रखना है, डिस्क में रखना है। तो ये एल्गोरिथम होगा, और जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपका पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है। और पेज फॉल्ट कैसे ऑकर होगा, अगर वो मेमोरी में नहीं मिल रहा है मतलब पेज फॉल्ट ऑकर होगा, अगर वो मेमोरी मिल रहा है तो पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। तो इसके लिए इस पेज फॉल्ट को काउंट करने के लिए वी हैव टू यूज ए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बेसिकली 3 टाइप के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जिसमें पहला होगा फीफो, दूसरा होगा आपका LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, और तीसरा होगा ऑप्टिमम। तो दैट इज योर फोर्थ यूनिट, जहाँ पर हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक लार्ज वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी, और प्रोग्रामर की जो कंसर्न होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, फुलफिल करता है, और मोर एंड मोर स्पेस या मेमोरी प्रोवाइड करता है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो कि हम डिमांड पेजिंग के थ्रू करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक पेज जो होता है जो कि मेमोरी के रूप में यूज किया जा रहा है, उसको हम किस तरह से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू पेज को रिप्लेस कर रहे हैं, या डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पेज आपका मेमोरी में होगा, कौन सा नहीं होगा, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू होगा। दूसरा, जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है उसको हमें काउंट करना होगा, जो कि हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इसमें 3 टाइप के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे। पहला आपका होगा फीफो, दूसरा आपका होगा LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज, और तीसरा आपका होगा दैट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पांचवी यूनिट जो होती है दैट इज डिश शेड्यूलिंग। पांचवी यूनिट में हम क्या करेंगे, डिश शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिश शेड्यूलिंग क्या होता है, डिश शेड्यूलिंग जो होता है दैट इज दैट शेड्यूलिंग इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे एक शेड्यूल होगा इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का, जो कि अराइव होगा पर्टिकुलर डिस्क। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, शेड्यूल होगा, और ये शेड्यूल जो होगा क्या होगा, किस तरह से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो अराइव हो रही है पर्टिकुलर डिस्क में। डिश शेड्यूलिंग जो होता है ऑल्सो नोन एज ए इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। तो इनपुट आउटपुट का जो शेड्यूल होगा वो डिश शेड्यूलिंग के रूप में जाना जाएगा। और बेसिकली डिश शेड्यूलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर होता है वो कितनी बार मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो हेड मूवमेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू, जहाँ पे हम 4 टाइप के एल्गोरिथम पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका होगा FCFS दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा आपका होगा SSTF दैट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तीसरा आपका होगा स्कैन, चौथा होगा आपका C स्कैन जिसको हम कहते हैं सर्कुलर स्कैन। तो इस टाइप से हम एल्गोरिथम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे या फाइंड करेंगे कि जो आपका हेड है उसका कितना मूवमेंट आ रहा है, उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। दूसरा कंसेप्ट है फाइल कंसेप्ट, ठीक है। अब फाइल क्या होता है, फाइल जस्ट लाइक ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और दैट इज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, डाटा रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी स्टोरेज, और सच एज मैंडेटरी डिस्क और मैंडेटरी टेप।
तो फाइल कंसेप्ट क्या बता रहे हैं, आपकी फाइल जो होता है नेम होता है, ठीक है, जहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को और जो कि हम स्टोर कराएंगे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, और ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगा, मैंडेटेड डिस्क होगा या मैंडेटेड टेप। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फाइल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे कि फाइल के डिफरेंट टाइप के जो एट्रीब्यूट होंगे, जिसमें नेम होगा फाइल का, टाइप होगा, उसका साइज होगा। फाइल के ऑपरेशन पे डिस्कस करेंगे जहाँ पर रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है। इसके अलावा फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। फाइल एलोकेशन मेथड पे हम डिस्कस करेंगे। तो कई टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं या कई टाइप के जो टेक्निक्स होती हैं, कई टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो फाइल कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट 5। तो इस तरह से ये आपका यूनिट वाइज आपका डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया। जैसे यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका प्रोसेस है, जहाँ पर प्रोसेस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जहाँ प्रोसेस कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस ऑपरेशन और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर हम सीपीयू शेड्यूलिंग पे डिस्कस करेंगे, और ये सीपीयू शेड्यूलिंग क्या बताता है कि किस तरह से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, ये हम सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू पढ़ेंगे। जो 4 टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहला आपका होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से, और सेकंड आपका होता है दैट इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, तीसरा आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और चौथा आपका राउंड। तो ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है ये प्रोसेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो उसमें हम डेडलॉक पे डिस्कस करेंगे और मेमोरी मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन सर्विसेज के अंतर्गत आता है मेमोरी मैनेजमेंट। किस तरह से मेमोरी प्रोसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, किस तरह से मेमोरी जो है हम रिलीज कर रहे हैं प्रोसेस के द्वारा, और इन सारे कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। चौथा जो है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक लार्ज वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर प्रोग्रामर को कंसर्न नहीं करना होता मेमोरी के बारे में। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम किस तरह से पेज को रिप्लेस करते हैं, पेज को किस तरह से हमें रिप्लेस करना होगा अगर वो मेमोरी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, फाइंड आउट नहीं हो रहा है, उसके लिए हम कई टाइप के एल्गोरिथम पे डिस्कस करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग और फाइल शेड्यूलिंग का हम डिस्कस करेंगे, ये आपका यूनिट 5 के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल टॉपिक पे, बात करेंगे किस बात करेंगे, प्रैक्टिकल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिक पार्ट, इसके अलावा एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो प्रैक्टिकल पार्ट में जैसे हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे हमने बात की थी सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि किस प्रोसेस को हमें कब क्या करना है, शेड्यूल करना है, और किस प्रोसेस को कब सीपीयू एलोकेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं। अब उस प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड करना होगा जिसके थ्रू अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट भी होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम डेडलॉक पे जाएंगे तो हम बैंकर एल्गोरिथम पे डिस्कस करेंगे, और ये बैंकर एल्गोरिथम जो होता है ये बताता है कि जो प्रोसेस की स्टेट है वो सेफ है स्टेट है या नहीं है, और अगर सेफ स्टेट है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्लासिकल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे दूसरी यूनिट आपकी प्रोसेस की, जहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी होता है, और इस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम कई टाइप के प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है, कि प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर्स को कैसे कंज्यूम करेगा, और उसके लिए एक कॉमन मेमोरी स्पेस रखेगा जिसको हम बफर कहते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि इसके प्रैक्टिकल पार्ट में आएगा। इसके अलावा हम फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे डिस्कस करेंगे, जैसे हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हम किस पेज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको फिक्स साइज दिया जाएगा मेमोरी का, और जहाँ पर हमें पेज को पुट करना होगा, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये बताएगा कि किस पेज को हमें पुट करना है, किस पेज को मेमोरी में पुट करना है या नहीं करना है, और कितना आपका पेज फॉल्ट ऑफर हो रहा है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम डिस्क शेड्यूलिंग पे भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अभी हमने बात की कि किस तरह से डिस्क शेड्यूलिंग को हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग के अंतर्गत भी देखते हैं, और जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही है वो पर्टिकुलर डिस्क के लिए कैसे आ रही है हम डिस्कस करेंगे। और कई टाइप की एल्गोरिथम यहाँ पे होती है, जिसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट और स्कैन शेड्यूलिंग और सी स्कैन शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया। हम बात करें कोर्स और लर्निंग आउटकम्स की, तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो हम एनालाइज करेंगे ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो बेसिक आर्किटेक्चर कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन होते हैं या कई टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर आपका अलग होगा। अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इसका आर्किटेक्चर अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनालाइज और डिजाइन द एप्लीकेशन रन इन द पैरेलल, किस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है उसको हमने डिज़ाइन किया है, किस तरह से पैरेलली रन हो रहा है यूजिंग द प्रोसेस,
और थ्रेड मॉडल्स इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। किस टाइप से आपके प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स पाए जाते हैं जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनालाइज द प्रोसेस मैनेजमेंट कंसेप्ट, किस तरह से प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं इसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है प्रोसेस के बीच में, इस पर डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपके क्या होंगे, एट ऑल आर द कोर्स और लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पे एक असाइनमेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन उठता है कि फाइंड द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन देयर यूज। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ किया जाता है, जो कि इसको सपोर्ट करता है और सारे जो भी प्रोग्राम उनको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ हो कि आजकल के स्मार्टफोन है उसमें यूज़ किया जा रहा है और ये सारी एप्लीकेशंस को रन करता है स्मार्टफोन में जो रन किए जाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा अगर हम और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, जैसे यूनिक्स और लाइनेक्स है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक विंडोज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन हो गया। सजेस्टेड रीडिंग की हम बात करें तो ई बुक आपका पीटर गैल्विन की बुक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट के नाम से आता है। विलियम स्टेलन की बुक भी आती है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा एक जे बैच की बुक है जहाँ पर डिज़ाइन ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करना है। और टेनेनबाउम की बुक आती है जबकि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस आपकी सजेस्टेड रीडिंग बुक है, पीटर गैल्विन की बुक हो गई, विलियम स्टेलिंग की बुक हो गई, टेनेनबाउम की है, जे बैच की बुक हो गई, ये सब आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बुक्स हो गई। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है IT501 इसका जो कोड है, इसमें हम एक ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कोर्स ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कोर्स ओवरव्यू हमने क्या बताया कि यूनिट 1 में कौन कौन से जो मेजर टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं, इस तरह से हमने डिस्कस किया। इसके अलावा थ्योरी के अलावा ये प्रैक्टिकल पार्ट्स को भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो कौन कौन से प्रैक्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे अपने पूरे सेमेस्टर में, उस पर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी कहना चाहिए रीडिंग बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया कि कौन सी बुक आप रीड कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, कोर्स ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। आगे हम और डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द PPT जहाँ पर हम कोर्स ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।